diving into programming, let's have a look why we study it. Consider a case where two humans want to talk to each other, but they are not able to do so. Why? Because they both know different languages. Suppose this person knows Hindi and this one knows Japanese. But their communication is really important. So, how they can communicate? They can use translator. The translator converts Hindi to Japanese and then back Japanese to Hindi. So, why we study programming? To talk to computers. Human language is very different from machine language. Humans have different languages like Hindi, English, Japanese, French, Spanish, and machine languages 0101000011 means it consists of zeros and ones. But how programming help us to talk to computers? Every language provides certain environment called development environment. So we have humans and machines. Humans understand ABC 1 2 3 etc. Whereas on the other hand machine understands 0101, that is binary language. So this environment converts human readable and understandable code to machine code and then machine code back to human code. In Python, this environment provides us with editor, interpreter, and debugger. Editor is a software where we write code. Interpreter is a tool that executes instructions written in high level language. Means हम जो लिखते हैं उसे समझना कि क्या लिखा है, ये इंटरप्रेटर का काम होता है. And debugger is a program that can help you find out what's going on in the program. You can stop the execution at any prescribed line number, print out variables, continue execute statements one by one, and repeat such actions until you have found bugs. Every language is written with a combination of grammar, syntax, logic, and library, that is API. जैसे हर लैंग्वेज की कोई ग्रामर होती है, लाइक इंग्लिश में हैव, हैव बीन, हैड बीन. कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, ये लैंग्वेज की ग्रामर होती है. कब फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, ये होता है लैंग्वेज का सिंटेक्स. सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग वी हैव इट्स ग्रामर एंड सिंटेक्स. और पाइथन में तो सिंटेक्स का खास ख्याल रखना होता है, बिकॉज इफ वी राइट रॉन्ग सिंटेक्स इट विल गिव अस एरर, especially for indentation. Now coming to logic. Logic is important for solving any problem. You build logic by practicing more questions by yourself. And the most important is library. It is reusable chunks of code that you may want to include in your program. Means we have already defined code in our library, and suppose we are making any program, let's say my program. So we can directly use that code in our code. This is just like the library we have in real world. जैसे हमारे स्कूल या कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, वहाँ से हम बुक्स बोरो करते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरी होती है जहाँ पर डेवलपर्स ने ऑलरेडी कुछ कोड बना कर रखा होता है. ये कोड हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट फंक्शन. प्रिंट फंक्शन क्या है? ये फंक्शन हमने नहीं बनाया, तो ये आया कहाँ से? ये पाइथन डेवलपर्स ने बनाया है जो हम अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं. और ये जो फंक्शन प्रिंट फंक्शन रखा हुआ है, ये लाइब्रेरी में रखा हुआ है, हम उसे वहाँ से कॉल करके बुलाते हैं. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी. सो नाउ वी नो वी लर्न प्रोग्रामिंग टू इंटरैक्ट विद सिस्टम्स, बट व्हाई वी वांट टू कम्युनिकेट विद सिस्टम्स? फॉर ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेटिंग एनी टास्क, किसी भी ह्यूमन वर्क को कंप्यूटर से कराना. फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटिंग. अर्लियर वी डोंट हैव कैलकुलेटर्स, सो उसमें क्या हमें सारी कैलकुलेशंस मैन्युअली करनी पड़ती थी, जिससे हमारी एरर्स की चांस भी हाई होती थी और टाइम भी हमें ज़्यादा लगता था. बट अब कैलकुलेटर्स होते हैं तो उससे हमारा टाइम और एफर्ट दोनों कम लगता है.
तो हम क्या करते हैं, जिस काम को करने में ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगे उसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं. So automation is making a system or process operate automatically. Like for example, we have now smartphones which can do every possible thing for us. So this is automation. And automation is also important because it reduces the manual task. पहले हम सारे काम मैनुअली करते थे बट अब वही काम मशीन से होते हैं, तो मैनुअल वर्क रिड्यूस हुआ. द कॉस्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट, पहले हर एक प्रोडक्ट को एक एक ह्यूमन बीइंग बनाता था तो उसमें उसको एफर्ट लगता था, उसे पैसे देने पड़ते थे उसको बनाने के लिए. बट मशीन से ही ऑटोमेट हुआ टास्क, तो मशीन कर रही है वो टास्क. सो कॉस्ट ऑफ क्रिएशन कम हुआ. द टाइम फॉर क्रिएशन, टाइम भी पहले ह्यूमन बना रहा था तो टाइम ज़्यादा लगता था, बट अब मशीन बना रही है तो वही कम चुटकियों में हो जाता है. सो it reduces the time for creation, and most important it reduces errors. जहाँ पर भी मैनुअल वर्क, जहाँ पर भी ह्यूमन वर्क इन्वॉल्व होता है वहाँ पर एरर के चांसेस बहुत होते हैं. बट अगर हम उसी टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन हम ले सकते हैं एग्जांपल के लिए. तो अगर ह्यूमन कैलकुलेट कर रहा है कुछ बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं तो वहाँ पर एरर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. बट अगर वही टास्क मशीन कर रही है तो एरर रिड्यूस हो जाती है या ज़ीरो पे चली जाती है एरर. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इट रिड्यूसेस एरर्स.